اسلام نے انسان کی فطرت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، جسمانی تبدیلیاں ہوں یا روحانی سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کو پاکیزہ انداز میں سمجھایا، چاہے وہ کتنا ہی حساس کیوں نہ ہو۔ آج ہم بات کریں گے، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیم دی؟ آئیں وقت کے دریچوں میں جھانکتے ہیں اور چلتے ہیں اس دور کی طرف جہاں سوال شرم کا نہیں، علم کا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے انسان کی فطرت کو کبھی پردوں میں نہیں چھپایا، بلکہ ہر سوال کو علم کی روشنی میں سمجھایا ہے، چاہے وہ کتنا ہی حساس کیوں نہ ہو۔ آج ہم ایک ایسے ہی سوال کا جواب لے کر آئے ہیں، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ چلیے مدینہ کی اس بابرکت فضا میں واپس چلتے ہیں، جہاں مسجد نبوی کے ستونوں کے سایوں میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے بیٹھا کرتے تھے۔ انہی دنوں امی سلیم رضی اللہ عنہا، جو علم کے معاملے میں بے حد بہادر تھیں، ادب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ سوال کیا جسے بہت سی عورتیں پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کرتیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت کو بھی نیند میں ویسی حالت ہو جائے جیسے مرد کو ہوتی ہے اور اسے رطوبت محسوس ہو تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ اس ماحول میں لوگ شاید ایسے سوال سے شرما جاتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان اور سادگی سے جواب دیا، ہاں، جب وہ گلاہٹ دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ ایک عورت نے اتنا پوشیدہ سوال پوچھ لیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی اور واضح طور پر فرمایا کہ دین کے معاملے میں سوال کرنا ضروری ہے اور عورتوں کو سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اسی روایت کے قریب ایک اور موقع پر امی سلیمہ رضی اللہ عنہا نے حیرانی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اگر ایسا نہ ہوتا تو بچہ ماں سے مشابہت کیوں رکھتا؟ اس جواب نے نہ صرف مسئلہ واضح کر دیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ عورت کی جسمانی فطرت بھی اتنی ہی حقیقی اور قدرتی ہے جتنی مرد کی۔ دین کا اصول بھی بالکل صاف ہے، اگر عورت کو نیند میں رطوبت کا احساس ہو یا اس کے آثار ظاہر ہوں تو غسل واجب ہے، لیکن اگر صرف خواب آئے اور کوئی اثر نہ ہو تو غسل ضروری نہیں۔ اسلام نے کبھی ان مسائل کو شرم کا موضوع نہیں بنایا بلکہ علم اور سمجھ کا حصہ قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورتیں بھی پورے ادب کے ساتھ ہر سوال پوچھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت، نرمی اور پوری وضاحت کے ساتھ جواب عطا فرماتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے، یہ ایک فطری اور طبی عمل ہے، اور اسلام نے اسے بالکل کھل کر بیان کیا ہے تاکہ دین مکمل، آسان اور سمجھ میں آنے والا رہے۔ ناظرین، اسلامی شریعت میں ہم بستری کا وہ طریقہ جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے، دو خاص طریقے ہیں جو تقریباً ہر عورت کے لیے خوشگوار اور مناسب تصور کیے گئے ہیں۔ دراصل میاں بیوی کے درمیان تعلق کے کچھ اہم مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں، شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق اور فرائض سیکھنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو جنسی تعلق کی ضرورت ہے، جیسے روزانہ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بیوی کی طہارت اور نیکی کا سبب بھی ہے۔ بروایت احیاء العلوم، جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے، خصوصاً شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد بھی، تو اسے چاہیے کہ اسلامی آداب اور طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ ناظرین، سطر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھنا نہ بھولیں، اور سب سے بہتر یہی ہے کہ کمرے میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ کر دائیں قدم اندر رکھیں۔ اس سے شیطان کمرے سے دور رہتا ہے، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ باری بروایت تفسیر نعیمی، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا مسلط ہے، لہٰذا اگر مرد جلد فارغ ہو جائے تو فوراً بیوی سے الگ نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ فتاوی رضویہ کے مطابق جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا زنا کے برابر ہے اور سخت گناہ ہے۔ جمع کے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں، البتہ خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو۔ بیوی سے صحبت ایسے اوقات میں بھی جائز نہیں جب نماز، روزہ
एतकाफ या हैज़ो नफास हो। मर्द और औरत एक दूसरे का सत्र यानी शर्मगाह देखना और छूना जायज है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस यानी शर्मगाह की तरफ देखने से इज्तिनाब करें, वरना हाफिजा कमजोर हो सकता है और निगाह भी मुतासिर हो सकती है। हम बिस्तरी के बाद मर्द और औरत को अपने अपने कपड़े से सत्र साफ करना चाहिए, क्योंकि एक ही कपड़ा इस्तेमाल करने से नफरत और जुदाई पैदा हो सकती है। अगर हम बिस्तरी के बाद एहतलाम हो जाए या दोबारा सोहबत करना चाहें तो भी सत्र धुलना जरूरी है, और बेहतर यह है कि वुजू कर लें, वरना बच्चे को बीमारी के खतरात लाहक हो सकते हैं। नाजरीन, जमा के बाद कम से कम आधा घंटा इंतजार करके गुस्ल करना चाहिए। इसमें ना सिर्फ सेहत और तंदुरुस्ती है, बल्कि मरते वक्त हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब हो सकती है। जमा के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुनासिब नहीं, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पिया जा सकता है। इस्लाम इंसानी जिंदगी के तमाम तकाज़ों को आसान और बेहतरीन तरीके से पूरा करता है और जिंदगी के हर मामले के लिए पाकीज़ा उसूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता, इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात बयान कर दी गई। निकाह और बीवी से जमा शर्मगाह की हिफाजत के साथ अफजाइश नस्ल का सबब है, फिर अल्लाह इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बतला सकता। पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो फितरी सुकून के लिए शरीके हयात की जरूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीके हयात के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है और जमा के बाद भी साफ सुथरी और रहनुमाई के उसूल दिए हैं, जिनकी जानकारी हर मुसलमान मर्द और औरत पर एक जरूरी है। यहूदियों का ख्याल था कि बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जमा करने से लड़का भिंगा पैदा होगा, लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहो आओ। सूरा बकरा। इसका मुद्दतिस में जिस तरह चाहो जमा कर सकते हैं, क्योंकि शहर के लिए बीवी की अगली शर्मगाह ही हलाल है, जबकि पिछली शर्मगाह में वती करना हराम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं तो कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज में औरत से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाए करीब ना जाओ। जब वो पाक हो जाए तो उसके पास जाओ और जहां से अल्लाह ने इजाजत दी है वहां जमा करो। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहे हैं कि हैज की हालत में बीवी के पास ना जाओ और गुस्ल के बाद उस जगह से जमा करो जहां से जमा करने की इजाजत दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम बीवी से जमा करते हो तो तुम्हारे उज़्व में सदका है। बिरवायत सही मुस्लिम। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या उसमें भी उजर मिलता है? तो आपने फरमाया, बताओ, अगर वो ये ख्वाहिश हराम जगह पर पूरी करता तो क्या उसे गुनाह ना हो तोता? सहाबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं? लिहाजा फरमाया कि इस वजह से जब वो सुबह सही जगह से ख्वाहिश पूरी करता है तो उसके लिए उजर है। कुरान और हदीस में हम बिस्तरी करने के दो ऐसे तरीके बयान किए गए हैं जो तकरीबन हर औरत पसंद करती है और कुरान और हदीस में भी पसंदीदा करार दिए गए हैं। नाजरीन इकराम, कुरान पाक ने हर मोड़ पर मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई है और इसी तरह हम बिस्तरी के बारे में भी शरीयत ने वाज़ेह रहनुमाई दी है। वो दो तरीके ये हैं। पहला तरीका ये है कि औरत नीचे लेटी हो और शौहर ऊपर लेटा हो और हरकत करे। कुरान पाक ने इस तरीके को बयान किया कि औरत नीचे लेट जाए और शौहर उसके ऊपर हो। इस तरीके से बीवी के साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना दोनों के लिए लज्जत का बाइस बनता है और कुरान में भी इस तरीके की पसंदीदगी बयान की गई है। नाजरीन इकराम, दूसरा तरीका हदीस में बयान हुआ है जिसमें बीवी नीचे लेट जाए और अपनी दोनों टांगें शौहर के कंधों पर रखते, यानी शौहर उसके सरीन के दरमियान बैठकर हरकत करे। इस तरीके से जिन औरतों को हामिला होने में दुश्वारी होती है उन्हें हमल के लिए ज्यादा आसानी मिलती है। पहला तरीका ऊपर लेटने का था और दूसरा तरीका हदीस में बयान शुदा है जिसमें दोनों टांगें उठाकर हरकत की जाती है। मोहतरम नाजरीन, एक खातून ने सवाल भेजा और कहा कि वो बहुत शर्माती हैं लेकिन जानना चाहती हैं कि क्या ये गलती है या नहीं, और क्या औरत अपने शौहर के ऊपर बैठकर हमबिस्तरी कर सकती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने शौहर के ऊपर बैठकर हमबिस्तरी की और फरागत के बाद दोनों शर्मिंदा हो गए कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। मोहतरम नाजरीन, शरीयत में हमबिस्तरी के उसूल ये हैं
कि औरत शौहर के ऊपर बैठकर भी हम बिस्तरी कर सकती है और इसमें कोई हराम बात नहीं, अलबत्ता शरई हुदूद और आदाब के मुताबिक अमल करना जरूरी है। नाजरीन, ये समझना भी जरूरी है कि जिस तर्ज जिंदगी और समाजी या सकाफती असरात के तहत हम रहते हैं, बाज औरतें अपने आबा व अजदाद या मुआशरे की रिवायात की वजह से इस अमल को गुनाह समझ लेती हैं, लेकिन इस्लाम ने इस पर वाज़ेह रहनुमाई दी है कि जायज़ और शरीयत के मुताबिक ये अमल हलाल और सही है। नाजरीन, एक बात जहन में रखें कि बीवी शौहर के ऊपर बैठकर या शौहर बीवी के ऊपर होकर अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करे, ये हराम नहीं है। मर्द के लिए जायज़ है कि वो अपनी बीवी से अपने जायज़ हुकूक के मुताबिक ताल्लुक़ कायम करे और बीवी के साथ कुर्बत और सुकून हासिल करे। शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत और लज्जत हासिल करने के लिए वक्त के लिहाज से आज़ाद है, बशर्ते के शरई हुदूद की पाबंदी की जाए। शरीयत ने सिर्फ चंद चीज़ों से मना फरमाया है: हैज़ या निफास के दौरान हम बिस्तरी और बीवी के उस हिस्से से ताल्लुक़ जिसे शरीयत ने नाजायज़ करार दिया है। इसके अलावा शौहर अपनी बीवी से हर जायज़ तरीके से फ़ायदा उठा सकता है और ये दोनों के लिए सुकून, मोहब्बत और बरकत का बाइस बनता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ईमान अफरोज़ वाक़या ऐलान नबूवत के चंद रोज़ बाद एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि अचानक एक घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में इस कदर दर्द और कर्ब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार उस घर में दाखिल हो गए। देखा कि एक नौजवान जो हबशी मालूम होता था चक्की पीस रहा था और जार व कतार रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रोने की वजह पूछी। उसने अर्ज किया, मैं एक गुलाम हूं, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूं, शाम को थका हारा घर आता हूं तो मेरा मालिक मुझे गंदुम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है। उसको पीसने में पूरी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रोता हूं कि क्या मेरी जिंदगी इसी मशक्कत न गुजरेगी। मेरा जिस्म भी आराम चाहता है, मुझे भी नींद आती है, मगर मेरे मालिक को मुझ पर जरा तरस नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मशक्कत कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा, मगर मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूं। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस देता हूं। गुलाम खुश हो गया, वो सो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदुम मुकम्मल पीस ली गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ ले आए। दूसरी रात भी आप वहां तशरीफ ले गए, उसे सुला दिया और खुद चक्की पीसते रहे। तीसरी रात भी यही माजरा रहा। आप सारी रात उस गुलाम की मशक्कत उठाते और सुबह खामोशी से वापस तशरीफ ले आते। चौथी रात जब आप पहुंचे तो उस गुलाम ने हैरत से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं? आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर होता है और ना कोई फायदा, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया, मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूं, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। गुलाम ने पूछा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स मोहम्मद नाम का है जो अपने आप को नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही मोहम्मद हूं। ये सुनकर गुलाम बेसाख्ता बोल उठा, अगर आप वही नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए। इतने मेहरबान और शफीक तो सिर्फ नबी ही हो सकते हैं जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखें। आपने उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि यही गुलाम नबी करीम का आशिक सादिक बन गया। तकालीफ और मशक्कतें बर्दाश्त की, मगर दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा। जान देना कबूल किया, मगर इतने मेहरबान नबी का साथ छोड़ना कबूल ना किया। आज दुनिया इन्हें हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानती है। हुजूर के विसाल के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना की गलियों में रोते फिरते और कहते, लोगों, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं देखा है? मुझे दिखा दो। फिर कहने लगे, अब मदीना में रहना मेरे लिए मुश्किल है। चुनाचे वो शाम के शहर हलब चले गए। तकरीबन 3 माह बाद उन्हें ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया, ए बिलाल, ये क्या बेवफाई है? क्या मुलाकात का वक्त नहीं आया? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाब से बेदार हुए, फौरन ऊंटनी पर सवार हुए और लब्बैक या सैयदी या रसूलुल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। मदीना पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद नबवी गए। कभी मस्जिद में आपको तलाश करते, कभी हुजरों में कहीं ना पाया
तो कब्र अनवर पर सर रख कर रोने लगे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था आकर मिल जाओ, गुलाम हलब मुलाकात के लिए हाजिर है। ये कहकर बेहोश होकर मज़ार अक़दस के करीब गिर पड़े। खबर फैली तो सारे मदीने के लोग जमा हो गए और कहने लगे, बिलाल, वही आजान सुना दो जो हुजूर के जमाने में दिया करते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं माजरत खा हूं। जब मैं आजान देता था और अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहता था तो हुजूर को अपनी आंखों से देखता था। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसको देखूंगा? बाज सहाबाए किराम ने मशवरा दिया कि हसनैन करीमैन से सफारिश करवाई जाए। जब वो हजरत बिलाल को आजान के लिए कहेंगे तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे। चुनाचे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया, ए बिलाल, हम आज आपसे वही आजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाया करते थे। अब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इनकार मुमकिन न था, लिहाजा इसी मकाम पर खड़े होकर आजान देने लगे जहां हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में दिया करते थे। वाक़े की कैफियत कुतुब सैर में यूं बयान हुई है कि जब आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर कहा तो मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता गया। जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात अदा किए तो गूंज में मजीद इजाफा हो गया, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह के अल्फाज अदा किए तो तमाम लोग हत्ता के पर्दानशीन खवातीन भी घरों से बाहर निकल आईं। रिक्कत व गिरियजारी का आलम ऐसा था कि लोग कहने लगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीने मुनव्वरा में उस दिन से ज्यादा रोने वाले मर्द व जन कभी न देखे गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की आजान को तराना इश्क करार देते हुए फरमाते हैं, आजा आजिल से तेरे इश्क का तराना बंदी, नमाज उसी के नज़ारे का एक बहाना बनी। आशिक़ ज़ुल्फ़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हजरत बिलाल हबशी वो पहली अजीम व मुक़द्दस हस्ती हैं जिन्हें दुनिया के पहले मुअज्जिन होने का आला शरफ मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि बिलाल कितना अच्छा आदमी है, वो तमाम मुअज्जिनों का सरदार है। आपके वालिद रिबाह और वालिदा हमामा अरब के एक कबीले के गुलाम थे। ये सरजमीन अरब का वो तारीक दौर था जब इंसान अखलाकी पस्तियों में गिर चुका था और गुमराही मुसल्लत थी, और उस दौरे जहालत में सबसे मजलूम तबका गुलामों का था, जिन्हें बुनियादी इंसानी हुकूक तो क्या, सुकून से जिंदगी गुजारने का भी हक न था। सैयदना हजरत बिलाल उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। वो अपने आका की बकरियां चुराया करते और पहाड़ों की तरफ जाते थे। एक दिन आपका गुजर गारे हिरा के करीब से हवा, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के बरगुजीदा और गैब से बाखबर थे, इस हबशी नौजवान को देखकर अपने पास बुलाया और फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम्हारी इस्लाम के बारे में क्या राय है? सैयदना हजरत बिलाल हबशी पहले ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुतासिर हो चुके थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलकश अंदाज़े गुफ्तगू तो हजरत बिलाल के मुंह से बेसाख्ता निकला, मैं आपके दीन को अच्छा पाता हूं। ये कहकर वो लौट आए, मगर उनका दिल वही रह गया। अगले दिन फिर बकरियां लेकर वहीं पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा और तासीर भरी बातें सुनी तो दिल मजीद बेकरार हो गया। जो सच्चाई पहले ही उनके दिल में रोशन थी वो इस्लाम की शक्ल में सामने आ गई, और आपने लब्बैक कहकर कलमा शहादत पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का शरफ पाया और दौलत ईमान से माला माल हुए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 बरस थी। आप उन पहले 7 खुशनसीबों में से थे जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोले। ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजदारी से तबलीग फरमा रहे थे, मगर इस्लाम का नूर ज्यादा अरसे तक कुफ्फार मक्का से छुपा ना रह सका। जल्द ही एहसास हो गया कि उनके बाज़ साथियों, खास तौर पर गुलामों और खवातीन में एक तब्दीली पैदा हुई है।
उमैया बिन खलफ को भी ये खबर मिल गई कि उसका गुलाम बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है और उनके साथियों में शामिल है। इस जुर्म की पादाश में उमैया ने सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। आपके लबों पर अहद के सिवा कुछ ना आता था। उमैया कहता, मोहम्मद के खुदा से बाज आ जा, लेकिन इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा सीने में रोशश थी। दुनिया की कोई सजा इस नूर को बुझा न सकती थी। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने बिलाल को इस हालत में देखा कि उमैया ने उन्हें ऐसी तपती जमीन पर लिटा रखा था कि अगर उस पर गोश्त रख दिया जाता तो वो भी जल जाता। मगर इस हालत में भी हजरत बिलाल अल्लाह के सिवा हर माबूद का इनकार करते रहे। उमैया ने तैश में आकर उनके गले में रस्सी डाल दी और उन्हें मक्का के शरीर लड़कों के हवाले कर दिया। वो बदबख्त लड़के आपको मक्का की वादी में घसीटते फिरते थे और तपती हुई अंगारा रेत पर उंधे मुंह डाल देते थे और आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते थे। लेकिन आशिक रसूल ने इस्लाम और सरकार का दामन फिर भी छोड़ना गवारा न किया। आप पर बेइंतहा जुल्म सितम का यह सिलसिला काफी अरसा जारी रहा। यार गारे रसूल सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर इस आशिक सादिक पर इतना जुल्म होते देख रहे थे। एक दिन उनसे रहा न गया तो वो उमैया के पास गए और कहा कि इस बेगुनाह और बेकस गुलाम पर इतना जुल्म सितम मत करो। अगर वो एक खुदा की इबादत करता है तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम उसके साथ एहसान करोगे तो वो एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमैया ने हिकारत से कहा कि मैं तुम्हारे ख्याली यौम आखिरत का कायल ही नहीं, जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फिर तहम्मुल से समझाया कि तुम ताकतवर हो, इस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारे शायान शान नहीं, तुम अरबों की कौमी रिवायत पर धब्बा मत लगाओ। उमैया ने कहा कि अगर तुम इस काले गुलाम के इतने ही हमदर्द हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते। सैयदना सिद्दीक अकबर राजी हो गए और आपको आजाद करा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हजरत बिलाल के आजाद होने की जब खबर मिली तो आप बहुत खुश हुए और हजरत अबू बकर से फरमाया कि मुझे भी इसमें शरीक कर लो। तो यार गार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो बिलाल को आजाद कर चुका हूं। सैयदना हजरत बिलाल हबशी अब आजाद थे और अपना ज्यादा वक्त अपने करीम आका की बारगाह अक़दस में गुजारते थे। उनसे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते, हिकमत व दानाई की बातें सीखते और दीन हक को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का हुक्म आया तो हजरत बिलाल ने भी हिजरत की और मक्का से मदीने मुनव्वरा जा पहुंचे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार का मुआखात कराया तो सैयदना बिलाल हबशी को हजरत अबू रुवैहा का भाई बनाया गया, जिनसे आपको बहुत मोहब्बत थी। फिर जब मदीने मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत की दाग बैल डाली गई तो एक साल के बाद ये सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए कौन सा अंदाज अपनाया जाए। लोगों ने मशवरा दिया कि हर नमाज के वक्त परचम बुलंद कर दिया जाए। कुछ ने कहा नाकूस बजाया जाए, कुछ ने कहा कि आग जलाई जाए ताकि लोग उसे देखकर नमाज के लिए आ जाएं, और कुछ लोगों ने कहा कि एक आदमी घरों में जाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाए। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब तरीकों को नापसंद फरमाया। अभी बहस जारी थी कि हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्ह हुजूर पाक की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मुझे ख्वाब में एक शख्स ने अजान के अल्फाज सिखाए हैं। फिर उन्होंने वो कलिमात दोहराए। हुजूर पाक ने वही इलाही के जरिए उन कलिमात को पसंद फरमाया। सैयदना फारूक आजम ने भी इसी किस्म का ख्वाब देखा था और उन्होंने भी ख्वाब बयान कर दिया। सरकार दो आलम ने सैयदना हजरत बिलाल को हुक्म फरमाया कि अजान दो। फिर आपने उन्हें अजान के कलिमात सिखाए और हिदायत फरमाई कि दोनों कानों में उंगली देकर अजान दो ताकि तुम्हारी आवाज बुलंद हो और दूर तक पहुंचे। चुनाचे मदीने की फजाओं में नगमे तौहीद बुलंद हुआ और सैयदना हजरत बिलाल हबशी को दुनिया इस्लाम के पहले मुअज्जिन रसूल होने का अजीम एजाज मिला। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो एक सिरे पर एक चबूतरा बनाकर उस पर छत डाल दी गई। उस जगह वो सहाबा रहते थे जो हर वक्त हुजूर पाक की खिदमत अक़दस में रहते और इल्म हासिल करते। उन मुक़द्दस असहाब को असहाब सुफ़्फ़ा कहा जाता है। अरबी में सुफ़्फ़ा चबूतरे को कहते हैं और सैयदना हजरत बिलाल हबशी भी असहाब सुफ़्फ़ा में से थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद आप शाम की जंगों में शिरकत के लिए चले गए। बैतुल मुक़द्दस की फतह में भी आप शरीक थे। 16 हिजरी में जब हजरत उमर शाम गए
تو حضرت بلال نے جابیہ میں ان کا استقبال کیا۔ قبلِ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اصرار پر اور شہزادگان رسول کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ہر طرف کہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ چھوڑ کر واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔